CPHI और PMAC इंडिया एक्सपो का 18वां संस्करण, जिसका आज इंडिया एक्सपो सेंटर में उद्घाटन हुआ, भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रदर्शित कर रहा है, जो वॉल्यूम आधारित जेनेरिक्स पावर हाउस से एक मूल्य आधारित इनोवेशन नेतृत्व वाले वैश्विक खिलाड़ी में बदल रहा है। इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस एक्सपो में फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री और उन्नत प्रयोगशाला प्रौद्योगिकियों सहित पूरे उद्योग से 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक और 50,000 आगंतुक एक साथ आ रहे हैं, जो सहयोग के एक गतिशील केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे API, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज़, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज़ 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज़ ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज़्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन तीन आए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए। सो इनोवेशन का बहुत ज़्यादा फोकस है। API, सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है। जो API जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पे डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए, बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ESG नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट इकोलॉजी पे हार्म करके। सो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है, जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजीज देखने मिलेंगी। Friends, very good morning. We are speaking from the place where South Asia's largest pharma expo. I think India's Janamani largest, one of the largest 5 expos in every sector. More than 2,000 companies are exhibiting in CPHI PMAC. I think this is the largest expo in South Asia, CPHI PMAC. My name is Chakrabarti, ABPS. I am Honorary Advisor of Pharmaceutical Government of India. I am also Global Ambassador of World Packaging Organization. And I am involved with many associations like Federation of Pharma Entrepreneurs. So I am Chairman for AP and Telangana also. I am so happy to be associated with this CPHI for the last 20 years. So 20 years ago, this expo used to be around 100 stalls, 100 people were participating. Today there are 2,000 exhibitors, more than 140,000 square meters of exhibiting space. This is the largest. So it is the entire value chain of the pharma, the manufacturing, finishing, packing, packaging, integral part of everything, APIs, formulations. Each vertical is exhibiting here. But because year on year there is a 20% growth, now they are splitting this as 2 exhibitions from next year onwards, CPHI in Dwarka and also PMAC in Greater Noida, but with an overlap of 1 day. So everybody will be able to visit both the expos because it is growing 20%. Today we know the Indian pharma is worth around $60 billion. It's going to increase by $130 billion by 2030. And the Prime Minister's wish is that Mr. Piyush Goyal is taking all the care, especially in the exports area. It's growing year on year, 30 billion exports. I think one of the largest. We are third largest in the world as far as the volume is concerned, even though on the value we are around 12th or 14th. But we are the saviors of the world healthcare by producing the affordable drugs, especially for the USA. एवरी पिल 3 दवाई में 1 दवाई हिंदुस्तान से ही जाता है। US में इतना बड़ी बोलता है, बट अल्टीमेटली दे ट्रस्ट आवर मेडिसिन्स एंड वी आर सेफ गार्डिंग. But US alone we are exporting around $10 billion worth of medicines, but that 10 billion actually equal to more than $250 billion worth. That is the healthcare load we are reducing. I think we are all very proud of the Indian pharma sector, and we are happy that we are representing here from all the multiple sectors. Multiple associations are involved in this, and this expo under Informa Markets is a big catalyst. It's not an expo. If you say it is an expo, it's an understatement. So it is helping the industry to grow.
year on year by 20%, and this will be going to the world खेला जाता है वो हो गया 20-22 साल और since maybe 20 साल से we always say we are fourth largest when it comes to volume and 14th largest when it comes to value. So a time has come when we need to move up the value chain and have a value-led growth. It cannot be only volume. Also, we need to move up the value chain in terms of having more innovative medicines being accessed by an Indian patient जो आज एक Indian patient को इनोवेटिव मेडिसिन मिलने में 3-4 साल का लैग रहता है। बहुत तरक्की हुई है। आज से अगर यही प्रश्न आप मेरे से 5 साल पहले पूछते थे तो 10-11 साल लगते थे, अभी वो रिड्यूस हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इज कि व्हाई शुड एन इंडियन पेशेंट नॉट गेट इट साइमल्टेनियसली विद द ग्लोबल लॉन्च। जब ग्लोबल लॉन्च हुआ इधर भी है। मैंने पहले कहा हमको इंडिया को एक फार्मा पावर हाउस बनाने का, बिकॉज टैलेंट इंडिया में है, डिजीजेज इंडिया में है, सब कुछ यहाँ है, तो व्हाई नॉट बी डिफॉल्ट इन इंडिया। So we are at a very advantageous position and we need to capitalize on that and work on it. एडिशन है जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें 2000 में से अराउंड पार्टिसिपेशन 120 कंट्रीज से ज़्यादा डेलीगेट्स और एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, सो दैट्स द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। बट मेजर डेलीगेशन इज फ्रॉम एशिया, यूरोप, I would say even US there was certain participation, but major Asia, Middle East and Europe is what is strong over here in terms of participation. And Africa, of course, African buyers we are there for sure. I think a lot of people, you must know, probably I'm the only person associated in the first edition, wherein around 100 or more odd companies have participated in CPHI PMAC at that time, exactly 20 years ago. Almost every edition I am present during the last 20 years. Thanks to the UBM those days and the Informa now, it's South Asia's largest pharma expo. I can say if you call this just as an expo, it is really an understatement. Wherein it is a business catalyst. Basically, to answer your question, Mr. Yogesh has already told, more than 2,000 exhibitors. I think this show is, if not the largest, one of the top 5 of all sectors in India. I think thanks to Informa. See, what is being exhibited here is APIs, formulations, machinery. That's more important. In fact, we have to mention that PMAC area. So it's a big catalyst to the development of the pharmacy. इंक्रीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा जनरेट कर रहे हैं। जहाँ तक जो रिसर्च का मोनोपोली इस इंडस्ट्री में है ही नहीं। Only when you have intellectual property for a certain period of time, 3 साल, 5 साल, 10 साल, there is intellectual property का protection. बाकी for every drug which we sell in India, अगर आप देखें कोई भी molecule, there are between 50 to 500 players. So actually, if you ask me, हमारे जैसे country में price control चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपस में ही there is so much of competition, market forces है. Unfortunately, there is a feel, जैसे आप express कर रहे हैं कि monopoly, it's not monopolistic. It's only for a small period of time your intellectual properties. देखेंगे जब CPHI नई शुरू हुई थी, जो छोटी कंपनियां थी, हमारे मेंबर्स थे, तो आज इतने बड़े बन गए हैं कि आज करीबन हमारे मेंबर्स जो है 100 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए अच्छा है कि ये जो देश की अभी दिशा बदल रही है, फ्रॉम जेनरिक से नवाचार और अनुसंधान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी MSME कंपनियां भी इसमें भाग लेगी और बढ़ चढ़ के हम लोग करेंगी। और भारत में जो भी नया काम हो रहा है, इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम सब साथ में, सारे इंडस्ट्री, रेगुलेटर और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हम लोग सब साथ में और सब मिलके हम देश को जेनरिक भी नहीं, हम लोग थोड़े आने वाले वर्षों में इनोवेशन और रिसर्च में भी लीडर बनाएंगे। और उसमें फायदा क्या होता है कि जब भी अगर इंडिया से जो भी अपनी जो भारत देश से जो दवाई बनती है, अगर 1 रुपया अगर जो पेशेंट खर्च करता है, उसको 2 रुपये से ज़्यादा की बचत होती है। तो ये हमने भारत देश ने अपना ये योगदान रहा है। और आने वाले दिनों में इनोवेशन और रिसर्च में भी जो हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेन में जो भी इनोवेशन और रिसर्च होती है, तो एक अनुमान के हिसाब से जो $2 बिलियन है। और अपने देश में नॉट ओनली फार्मा की जो स्ट्रेंथ है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, मशीन लर्निंग ले लो,
डेटा एनालिटिक्स ले लो, ये सारी शक्तियां मिलके हम लोग एक साथ में काम करेंगे और जो काम 10 से 12 साल में बाहर होता है, हम लोग बनती कोशिश अपने देश में 6 से 7 साल में हम लोग काम होगा। और जो $2 बिलियन का खर्चा होता है, हो सकता है कि जो $500 बिलियन में हो जाए। इससे पेशेंट को पूरे दुनिया भर में लाभ मिलने वाला है और हम लोग पूरी दुनिया में इसका लाभ, सस्ती दवाइयाँ, सब अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाली हम लोग पूरी दुनिया में हम लोग प्रदान करेंगे, ये कहेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि हम अपनी इनोवेशन और जितने भी प्रोडक्ट्स है प्रदर्शित कर सकें। थैंक यू। बेसिकली दिस इज ए ट्रेड शो, मतलब ये बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म है CPHI, जो खरीदने वाले हैं दूर दूर से आते हैं, कई देशों से आते हैं। एंड हमारा इसमें जो स्ट्रेंथ है रिगार्डिंग API एंड फॉर्मूले, वी आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम जेनेरिक टू इनोवेटिव कंट्री। तो इस रास्ते में सरकार क्या कर रही है? सरकार इसका कॉग्निजेंस ली है कि इसका जरूरत so sir, the government has taken cognizance of this matter and it is now focusing on deregulation कि R&D करने के लिए, so where the rules are stringent and time taking and without compromising the quality, हम कैसे कर सकते हैं? So in this regard, where licensing का requirement नहीं है पर R&D purpose, development purpose, there is what we call pre-licensing. लाइसेंस देने के पहले जितने भी प्रोसेस है उसमें भाई नोटिफिकेशन करने का वो सोच रही है। ऑलरेडी वो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए और BAB स्टडीज़ के लिए नोटिफिकेशन भी, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसको पब्लिक कमेंट्स भी आया है, उसको एग्जामिन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है और उसका फाइनल अप्रूवल होगा। तो वो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स पर R&D के लिए सिर्फ वो हमारा पोर्टल में वो डाटा अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन अपलोड करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो ऐसा ही वो जो टाइमलाइंस है ये सारे न्यू ड्रग्स अप्रूवल करने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी सोच रही है, वो इन हाउस जो एक्सपर्टीज डेवलप करने का सोच रही है। एंड ऑल्सो And thank you everyone for coming over and also waiting for us because we were pretty engaged in other activities. So we apologize to start with. But then having said that, it is a very crucial press meet for us as well because हमको मीडिया पार्टनर भी चाहिए अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए. And from that aspect, there are certain exceptionally good things which have happened in pharmaceutical industry, and there are certain challenges which we foresee and ongoing challenges which are there in the industry. तो पहले हम बात करते हैं अच्छी चीज़ों की. The best part for us was that we stand amongst the top 5 export promotion council under Ministry of Commerce. With our export turnover of $30.46 billion, हम top 5 export promotion council हैं. There are approximately 30 export promotion councils which come under Ministry of Commerce and उसमें फार्मेक्सिल 4th रैंक पे है, जो कि हम काफ़ी साल तक 5th रैंक में थे, फिर एक रैंक हमारी इम्प्रूव हुई है. इसका मेन रीज़न अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम जेनरिक मेडिसिन स्पेस में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई आई से सो बिकॉज इसका 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, जो दुनिया की सबसे स्ट्रिंजेंटली कंट्रोल्ड रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके आप सामान नहीं बेच सकते. इट इज़ नॉट अ कमोडिटी दैट आपने ट्रेड कर लिया और बेच लिया. द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, द रेगुलेटरी बैरियर्स आर वेरी हाई. उसको क्रॉस करके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपना सिक्का जमाया इन टर्म्स ऑफ क्लॉकिंग अप्रॉक्सीमेटली 16 बिलियन आउट ऑफ 30 बिलियन, which amounts to 50 to 53% of the total revenue what we generate out of the export. So हमारे लिए ये पैट ऑन द बैक मोमेंट है बिकॉज जो दुनिया की सबसे क्वालिटी वाइज स्ट्रिंजेंट है वो कंट्रीज ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ इसके बाद आपने पीछे सुना होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो टैरिफ थ्रेट आया था, बहुत सबको कंसर्न था, पूरी इंडस्ट्री से. बट आई एम हैप्पी टू शेयर दैट
हमारे अंदर भी सेक्शन 232 के अगेंस्ट, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के अगेंस्ट ये सारा इंक्वायरी हुआ था कि इंडियन जेनरिक जो आ जाते हैं यूएस में उनका क्या सेटअप है, क्या कनेक्शन है, कैसे वैल्यू चेन मूव करती है। एंड अभी तक हमारे पे कोई फार्मास्यूटिकल जेनरिक में कोई टैरिफ अभी अप्लाई नहीं हुआ। सो स्टार्टेड जुलाई के मंथ में अनाउंसमेंट आनी थी एंड देन अभी हम ये रीच्ड नवंबर, अभी दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा तो वो जो सेक्शन 232 की इंक्वायरी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। पर हमने अभी तक कुछ नहीं ऐसा सुना जहाँ पे टैरिफ का थ्रेट आए। जो इसका असर एक्सपोर्ट टू यूएस हुआ है, ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है पर डी ग्रोथ नहीं हुई है। सो अभी अगर हम YTD परफॉर्मेंस भी देखें तो इट हैज़ ग्रोन बाय 2.31%। तो हम पहले डबल डिजिट ग्रोथ में थे 14%, पर अभी हम 2.31%। इसको कहने के बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं। अच्छी बात तो यह है कि स्टडी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट, पर चैलेंजेस ये है कि अगले 5 साल में अगर हम इनोवेटिव स्पेस में नहीं आए, अगर हम कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, पेप्टाइड्स, बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स में हमने अपना पोजीशन नहीं लिया, तो ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो हमारा एक तमगा है हमको मिला है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज हमको अब इनोवेटिव स्पेस में आना ज़रूरत भी नहीं, मजबूरी है एक तरह से, क्योंकि हमको ग्लोबल थ्रेट और कंपटीशन बहुत है और हमारा एक कंपटीशन तो सबको मालूम ही है कहाँ से है। उसको अगर हमें ओवरपार करना है तो हमको उस स्पेस में जाना पड़ेगा जिसमें हम it's a very honorable moment for me, like when we hear from various manufacturing partners, innovative partners, that they have parked their budget in R&D and we are moving very strong. अभी GLP-1 inhibitor जो obesity reduction product है, इसका पेटेंट नेक्स्ट ईयर खत्म होने वाला है। अभी 7 कंपनियां तैयार हैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने।